A wonderful day, students. How are you all? I hope that you all are safe at your home and you have completed your previous work, that is 2 chapters of chemistry and 2 chapters of physics. In this video, we are going to start biology. Biology. Firstly, you should understand the definition of biology that we have studied in our very first video. In the very first video, I have discussed about the definition of science, physics, chemistry, biology. I will remind you the definition of biology. Actually, biology is made up of 2 words, bio plus logy, and bio means life, that means living things or life, and logy means study. Biology, study of life, that means in the biology we discussed with studies about the living things, about life. Living things, in living things we consider mainly 2 things, plants and animals, and human beings are considered in the animals. So in this biology we are going to study about 2 main things. First one is plants, about the plants, everything about the plants, and then about animals. In animals, human beings is also discussed. So let us start biology. I hope that you understand the definition of biology very well. And students, please prepare your biology topics very well from the very starting. Don't skip any topic. I think you have completed your previous work very well also. And if you haven't completed yet, then please revise that topics also, that are very important. So here is the first chapter of biology, that is the fundamental unit of life. In this video we are going to have a small introduction about the fundamental unit of life. In the fundamental unit of life we are going to discuss about some main things. First one is what are living organism made up of, that means living organism जो है, living चीज़ें जो है वो किससे मिलके बनी होती है. सो फर्स्ट जो चीज़ सबसे मेन आएगी वो होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने होते हैं. इसीलिए फर्स्टली जो हम स्टडी करेंगे सेल्स के बारे में करेंगे कि हमें सेल्स को समझने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बिकॉज सेल्स हमें दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उनका स्टडी करेंगे. फिर हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं जिससे ह्यूमन बॉडी मिलके बनी हुई है, वो ऑर्गेनिज्म क्या यूनिसेलुलर है कि उनके पास एक ही सेल है या फिर एक से ज़्यादा सेल है, मल्टी सेलुलर है. फिर हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल. नेक्स्ट बेसिक यूनिट, की सेल का वर्क क्या है, बेसिक यूनिट है ये हमारी बॉडी की. तो फर्स्टली तो हम पूरा सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं. एक्चुअली इन द होल चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल, बिकॉज चैप्टर नेम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ life is cell. So in this chapter we are basically discussing about cell. In the next topics we are going to discuss about what is the cell made up of, कि सेल किस किस चीज़ से मिलके बना होता है. इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सब कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी के पार्ट्स हैं उसके एक तरीके से. नेक्स्ट सेल डिवीज़न, की ये सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल डिवीज़न, और उसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. एंड स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट प्लीज़ prepare your biology chapters very well from the very starting. Don't skip any topic, don't create any confusion. So here is our chapter cell. सेल फर्स्टली तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या, आपको स्टडी क्या करना है. सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट है ये लाइफ की, तो आप यहाँ पर स्टडी करेंगे प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स के बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स. अब ये सब क्या होता है आपको अभी तो सिर्फ नाम दिख रहा है, अभी डिटेल में हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, जस्ट वेट.
क्लोरोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर, इन कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ हम इसका स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले यू शुड नो दैट व्हाट सेल इज़। सो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि सेल होता क्या है। देखिए, आपका घर है, घर बनते हैं कमरों से, कमरे बनते हैं दीवारों से, दीवारें बनती हैं ईंटों से। तो यानी हमारे घर को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ हमें चाहिए थी वो थी ईंटें। इसी तरीके से हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ चाहिए ना, वो है सेल। जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तब जाके हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है। एक्चुअल में तो और भी बड़ा सिस्टम होता है। पहले होते हैं टिश्यूज़ होते हैं, फिर सेल बनता है, सेल से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर होता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो काफ़ी लार्ज सिस्टम होता है। तो अभी आपको सेल के बारे में अच्छे से डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज आगे के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो इसी पर बेस्ड है। अगर यहाँ पर क्लियर करके नहीं चलोगे तो आगे का मुश्किल हो जाएगा। सो देखिए, सेल फर्स्ट टाइम हमें कहाँ मिला था। ये बाय चांस डिस्कवरी की गई थी, बाय चांस हो गई थी। कोई इंटेंशन नहीं थी कि ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, बिकॉज जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है वो चीज़ कहाँ से ढूंढने लगेंगे। ये तो बाय चांस डिस्कवरी होती थी स्टार्टिंग में। सो ये चांस डिस्कवरी थी बाय रॉबर्ट हुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रहेगा आपके बायोलॉजी में, रॉबर्ट हुक। 1665 में दैट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जिसका मतलब है कि पेड़ की छाल में जब उन्होंने देखा, कंटेन्ड अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल बॉक्सेस, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे पूरे छाल में। जब उसने माइक्रोस्कोप में काफ़ी अच्छे से देखा, माइक्रोस्कोप यानी काफ़ी स्मॉल लेवल पर जब कोई चीज़ बहुत बड़ी करके दिखाई जाती है, बहुत क्लियरली दिखाई जाती है, तो वहाँ उसने देखा कि पेड़ की छाल के अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो उसने इसे नेम दिया सेलुला। सिंगुलर फॉर्म में इसे सेलुला बोलते हैं, सेलुलिया ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लिटल रूम्स, यानी छोटे छोटे कमरे। इसको हमने बाद में थोड़ा छोटा नेम देने के लिए सेलुला ना बोल के सेल्स बोल दिया, और सिंगुलर फॉर्म में हम इसे सेल बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही क्या है, लिटल रूम, यानी कि छोटे कमरे। रॉबर्ट हुक डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, बिकॉज जैसा बताया कि पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बिकॉज इट इंडिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम इंडिकेट किया था कि लिविंग थिंग्स जो है काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर और यूनिट से मिलकर बनी हुई है। काफ़ी छोटे लेकिन ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन चीज़ों को जब बहुत सारी कंबाइन होती है तब जाके आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। सो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। सेल से बना होता है, इसके बारे में अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, ईंटों से बनती है, उसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी सेल से बनी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सेल से मिलकर बनी हुई है, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी क्या है, वो सेलुलर है। नेक्स्ट सम ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हैं, हमारी तरीके से ही होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग है, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाते हैं, ह्यूमन बींग आते हैं, एनिमल्स आते हैं। सिमिलरली ये कैटेगरी है, कुछ बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, एसेट्रा, ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको वर्ड दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब, यूनि वर्ड होता है वन, एंड सेलुलर सेल, इसका मतलब एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं विच आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल, जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं। दैट आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे सेल से मिले हुए ऑर्गेनिजम्स। ऑल सेल्स, सारी की सारी सेल्स, वेदर दे एग्जिस्ट एज वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर वो वन सेल है या फिर मल्टी सेलुलर हैं, वो उनका काम क्या होता है, वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें सांस लेना है, उन्हें खाना चाहिए, तो ये सारे के सारे, उनकी बॉडी चाहे एक सेल से मिलके बनी है चाहे बहुत सारी सेल से, तो उनमें कोई ना कोई सेल ऐसी ज़रूर थी। अगर एक सेल है तो वो एक सेल ही सारा का सारा काम कर रही है।
और अगर बहुत सारी सेल है तो उनको काम बटे हुए हैं, किसी का काम कुछ और है तो किसी का कुछ और। तो उनमें सेल तो वो हैं जो कि काम क्या करती है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन का, न्यूट्रिशन का, जो बॉडी के लिए बेसिक फंक्शंस है वो सेल वो परफॉर्म करती ही हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। ऐसे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल यूनिट है लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, सेलुलर लेवल है। सेल्स के लेवल को स्टडी करना है, सबसे बेसिक थिंग हो गई। सो सेल्स की डेफिनेशन यहाँ मार्क कर लेना कि सेल्स की डेफिनेशन क्या है। सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये काफ़ी सारे कंबाइन होते हैं, स्ट्रक्चरली अरेंज होते हैं, तब जाके पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है। ये हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। मार्केट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स। एंड नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी थी एंड यहाँ हम सेल के बारे में, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी सेल्स की स्टडी करना, उसके बारे में हर एक चीज़ जानना कि वो काम क्या करती है, फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो दिखने में कैसे है, उसमें हम कहाँ स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में। मार्क दिस टू डेफिनेशंस, write it in your fair notebook, and also write the discoverer of cell, Robert Hooke, and the timing in the year, in which year he have discovered this cell. This is very important. नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के डिस्कवरी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखिए, इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज। ये मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन था, बिकॉज हमने पेड़ की छाल तो उसने रॉबर्ट हुक ने देख ली, लेकिन वो छोटे छोटे उसे कमरे कब दिखे, बॉक्स कब दिखे, जब उसने मैग्नीफाइंग लेंस यानी माइक्रोस्कोप से देखा। जब बहुत स्मॉल लेवल पर उसने देखा तब जाके उसे छोटे छोटे रूम दिखे हैं। तो ये इन्वेंशन मेनली किस वजह से दिखाई दिया, मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से, जिसकी वजह से मैग्नीफाइंग लेंस जब डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी हो गई। आज हम छोटी से छोटी चीज़ को भी एनलार्ज करके देख सकते हैं। सो द फर्स्ट मेजर डिस्कवरी क्या थी, सेल की थी। इसके बाद इन 1665 में रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल को देखा था फर्स्ट टाइम। किस में देखा था, इन अ थिन स्लाइस ऑफ कोक, जिसका मतलब क्या है, पेड़ की छाल में। विद हिज सेल्फ डिज़ाइन क्रूड माइक्रोस्कोप, उस टाइम पर उन्होंने माइक्रोस्कोप अपना खुद से प्रिपेयर किया था। ये उनका माइक्रोस्कोप है जो उन्होंने खुद से बनाया था। ही ऑब्जर्व दैम एज हनीकॉम। उन्होंने जब उसे देखा ना, मतलब क्या कहते हैं, ये उनका पूरा माइक्रोस्कोप का व्यू है। यहाँ पर एक ग्लास रखा जाता है, ग्लास के अंदर उन्होंने पेड़ की छाल, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा रखा, उसकी छाल को रखा और फिर कवर करके उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप से उन्हें छोटे छोटे रूम दिखे। अब वो छोटे छोटे रूम उन्हें किस तरीके से दिखा, ऐसा लगा जैसे हनी कॉम हो, यानी मधुमक्खी का छत्ता हो। मधुमक्खी के छत्ते में भी ऐसा ही लगता है ना, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से रूम से बने होते हैं। तो इस टाइप से उन्हें लगा स्मॉल रूम, तभी उन्होंने उनको नेम क्या दिया, सेल दिया। लाइक स्ट्रक्चर्स, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थी मधुमक्खी के छत्ते जैसे, इसलिए उन्हें नेम दिया सेलुला और सेल्स। सेलुलर सेल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटल रूम। उन्होंने ये चीज़ अपने बुक में भी पब्लिश की, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। अच्छे से डिटेल में वहाँ डिस्कस किया गया है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1674 में, अर्विन लीeuwenhoek, एक डच साइंटिस्ट हैं। ये डच साइंटिस्ट, उन्होंने भी लिविंग सेल्स के बारे में स्टडी किया। लिविंग सेल्स सब में है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने बैक्टीरिया की देखा, प्रोटोजोआ, आरबीसी काफ़ी का देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो उन्होंने क्या पाया, ही वॉज एबल टू स्टडी दैम विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड। उन्होंने एक और अच्छे वाला माइक्रोस्कोप थोड़ा सा इन्वेंट किया, जो उन्होंने खुद ने बनाया था, और उससे उसको स्टडी किया। और फिर उसके बाद फिर साइंटिस्ट आए 1831 में, एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने डिस्कवरी की है, नेम दिया है, सेल के अंदर एक पॉइंट साइज, मतलब एक सर्कुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसको इन्होंने नेम दिया न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि सेल के जो कॉम्ब है ना, जैसे छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, तो बॉक्स में एक सर्कुलर थिंग प्रेजेंट है, उसको उन्होंने नेम दिया है न्यूक्लियस। ये फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये नेम लर्न करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जो चीज़ सबसे पहली बार किसी ने की थी और ये काफ़ी बड़ी इन्वेंशन भी है, इसीलिए इनके नेम लर्न करना मस्ट है, ईयर भी मस्ट है।
इसके बाद आता है J.E. पुरकिंजे। 1839 में इन्होंने टर्म यूज़ की है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझना क्या होता है। प्लाज्मा वर्ड का मतलब होता है लिक्विड और फ्लूइड। इसका मतलब यहाँ लिक्विड और फ्लूइड की बात हो रही है। एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल। जो बॉक्स बने हुए हैं ना, बॉक्स के अंदर तो है एक सर्कुलर पोर्शन जिसे न्यूक्लियस का, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो खाली जगह दिख रही है वो खाली नहीं है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरी हुई है जिसे का नाम प्रोटोप्लाज्म है और एक साइटोप्लाज्म है। ये दो वर्ड अभी आप क्लियरली समझोगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों ही फ्लूइड्स हैं। इसके बाद आया हक्सली। हक्सली ने इसे क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि ये फिजिकल बेसिस है हमारी लाइफ का, प्रोटोप्लाज्म को कहा। अब सेल थ्योरी, कि सेल के बारे में पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि क्या है सेल, इन सब के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सेल्स में तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता ही है, इसलिए ये पेज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका तो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, रिमेंबर रखना ही है आपको। सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय टू जर्मन बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी टू जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दी थी, एक था एमजेस कैलेडन, इन्होंने 1838 में, एंड जो कि एक बॉटनिस्ट हैं, जबकि एक और साइंटिस्ट है टी सचवान, जूलॉजिस्ट थे ये 1839 में। ये सब ब्रांचेस हैं साइंस की। सो एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सेल थ्योरी दी है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, सेल हमारे लिविंग बीइंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि सेल की डेफिनेशन है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि ऑल जो सेल्स हैं ना वो अराइज होती है, वो बनती है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, कि हमारी बॉडी में पहले से कुछ ना कुछ पहले सेल प्रेजेंट होती हैं और उनका प्री एग्जिस्टिंग, प्री का मतलब क्या है, पहले की एग्जिस्ट करने वाली, पहले जो प्रेजेंट है उसी से नई सेल बनती हैं। ही स्टेटेड दैट, उन्होंने आगे बताते हुए कहा, उन्होंने स्टेट किया, बताया है कि ऑमनी सेलुला इज सेलुला, इस वर्ड दिया है विर्चो, इसका मतलब ही है कि पहले की सेल से बना हुआ सेल, लैटिन वर्ड में ये कहा जाता है। विर्चो ने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, अपने कुछ जनरलाइजेशन को ऐड करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा कि सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी हमें बताती है, क्या क्या बताती है, क्या क्या है इसके अंदर, क्या कहती है ये, बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, की लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है आर मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से मिलकर बनी होती है या फिर सेल के प्रोडक्ट से, सेल के और कंपाउंड से, बिकॉज सेल के आगे आगे चीज़ें बनती जाएंगी, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गन सिस्टम, तो इस तरीके से तो सेल ही उनकी बेसिक चीज़ हो गई। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म में जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसकी वजह से होती है, जब सेल अपनी एक्टिविटीज़ करती है, बहुत सारी सेल कंबाइन होके, या फिर अगर यूनिसेलुलर है तो वो सेल की एक्टिविटीज़ का सम ही क्या होता है, हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ होती है। सेल डेवलप होती है, बनती है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले की सेल्स से। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग्स की। वायरस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। इसको हम अच्छे से बाद में भी स्टडी करेंगे कि वायरस को एक्सेप्शन क्यों कहा गया है। सो आपको यहाँ तक डिस्कस करना है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये भी थोड़ा सा माइनर सा देख लो, क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स। सेल को स्टडी करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, तो ये पूरा माइक्रोस्कोपिक पूरा उन्होंने प्रिपेयर किया था, जिसका नेम है लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, इसलिए हम इसे नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप, माइक्रो वर्ड पर देखने की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने इसे देखा। माइक्रोस्कोप्स का हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जर्व किस लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से फाइन डिटेल में क्लियरली बहुत स्मॉल लेवल पर ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। टू कॉमन टाइप्स जो माइक्रोस्कोप की हैं वो है लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो काफ़ी स्मॉल लेवल तक भी हम देख सकते हैं। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि पूरा 360 डिग्री तक भी देख सकते हैं, 3D पिक्चर में भी अच्छे से पूरा क्लियरली देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है ग्लास लेंसेज फॉर मैग्नीफिकेशन, की मैग्नीफाई करके देखने के लिए, एनलार्ज करके देखने के लिए, और विजिबल लाइट ऑब्जर्वेशन के लिए। मैग्नीफिकेशन इसका 100 to 1500 टाइम है, यानी अगर वो उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर है तो हम उसको अच्छे से 100 सेंटीमीटर तक 100% आगे तक उसे देख सकते हैं, 100 टाइम्स ज़्यादा तो मैग्नीफाइड कर देता है इतने टाइम। मैग्नीफिकेशन जो है इसके लेंसेज पे डिपेंड करता है कि हम कौन से लेंस यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर ये होता है, आई लेंस का ये है। ऑब्जेक्ट और स्लाइड जो है इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं,
इस प्लेस्ड ऑन द, ये क्लिप्स हैं, क्लिप्स के अंदर टिश्यूज़ यहाँ पर रखी जाती हैं। लाइट पास की जाती है ऑब्जेक्ट से, लाइटनिंग पास करते हैं हम ऑब्जेक्ट से, जो कि बाद में मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ लाइट पास की, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक कंडेंसर लगाया हुआ है, आइरिस लगाई हुई है। 2 टाइप के नॉब्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ये बताया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट जब पहले बार प्रिपेयर किया था तो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ था। कोर्स एडजस्टमेंट है, नॉब्स है, यूज़ किया जाता है रफ फोकसिंग के लिए कि फोकस कर सके उस सब्सटेंस पे जो हम रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और फाइन एडजस्टमेंट के लिए कि एडजस्ट करके हम उसे अच्छे से देख सकते हैं 3D लेवल पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी बड़ा माइक्रोस्कोप है जो कि मैग्नीफाइंग लेंसेज इसके अंदर यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ की जाती है। काफ़ी स्मॉल लेवल पर हम इसकी स्टडी करते हैं। इसका मैग्नीफिकेशन उससे भी ज़्यादा है, यानी उसका तो हम फिर भी जैसे 1 सेंटीमीटर की चीज़ को वो हम 100 सेंटीमीटर तक उसको 100 टाइम्स एनलार्ज करके देख सकते थे, यहाँ तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम्स एनलार्ज करके देख सकते हैं, 1 लाख टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था नॉल और रुस्का ने 1932 में, बट फर्स्टली जब यूज़ किया था तो 1940 में ही यूज़ किया गया था, उस टाइम पर यूज़ नहीं कर पाए थे। ये बायोलॉजिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहे, इन्होंने सेल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन सी है। राइबोसोम्स जो है कुडंट हैव बीन नॉन विदाउट इट। राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स भी हम पार्ट पढ़ेंगे। राइबोसोम्स बिना इसके हम पढ़ नहीं सकते थे, ये भी इनकी ही इन्वेंशन हो गई, बिकॉज जब इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया तब जाकर हम ये छोटी छोटी डिटेलिंग को समझ पाए हैं, अच्छे से समझ डिटेल में पढ़ पाते हैं आज हम। सो इसमें यही था। नेक्स्ट जो है ना वो आपका, बस ये देख लो इसमें है क्या, रीड कर लेना। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में ऑब्जर्वेशन किए। इसके अंदर क्या किया था एक्चुअल में, आप प्याज लिया, ऑनियन के आपने देखा होगा एक पॉलीथीन टाइप बिल्कुल पतली सी पील निकाल देनी, उसे पील कहते हैं। जो पॉलीथीन टाइप थोड़ी सी निकलती है ना, बिल्कुल कवरिंग अगर कभी देखी हो तो उसे पील कहते हैं। ऑनियन की पील का इन्होंने लिया था प्लांट सेल को समझने के लिए कि ऑनियन एक प्लांट है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे आप किसी भी आप पौधे की छाल ले सकते हैं, या फिर ऑनियन की पील ली, उसे यहाँ पर रख दिया माइक्रोस्कोप के अंदर। तब उन्होंने देखा कि उसमें भी छोटे छोटे कमरे हैं, तो पता लगा कि प्लांट भी सेल से मिलके बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल रूम से मिलके बने होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताया हुआ है। ये बताया कि इन्होंने कैसे कैसे रखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड छिड़का ताकि कलर अच्छे से दिख जाए। तो ये एक बार एक्टिविटी जस्ट रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, इसीलिए सबसे पहले जो इसकी सेल की डिस्कवरी जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा कवर करने का ट्राई करेंगे। आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिटेलिंग में थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ता है, इसीलिए आप लोग यहाँ तक अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।